Hello, welcome to Army Public School, Class 9. This is Dr. Surya Pratap Singh, and from today we are going to start with your book. Today we are going to start the first lesson, that is Chapter 1, Computer System. The whole lesson is divided into two parts, that means two lectures. Today we are going to talk about the first part of this lesson. So we are going to discuss about computer system, input and output devices, types of software, etc. Now, first of all, we'll talk about computer system. So, in the modern era or in today's world, we can see there are lots of work are going on with the help of computer. So the increasing use of information technology in our life has resulted in new and improved way of thinking, living and working. Earlier, computers were used mostly by scientists and engineers for complex calculations and operation, and they were very costly. But nowadays, these times, computers are very affordable. That means we can buy computers easily for all of us. If we talk about banks, hospital, railway stations, shopping complexes, school, colleges, homes, everywhere computers are very necessary, and we can see computers are available at all these places. So that is why we are going to start with computer. I think all of you know about the definition of computer. Computer word computer is derived from the word compute, which means to calculate. A computer is an electronic device that can perform a wide variety of tasks by executing a given set of instructions. It is a versatile and can handle multiple tasks like documentation, accounting, budgeting, etc. Now, if we talk about the acronym of computer, in the last line it is given, the acronym of computer is Common Oriented Machine, particularly used for trade and education research. The first letters of these words are taken as computer. This is not the actual expansion of computer, but it is an acronym जिसे बनाया गया है कि हम कंप्यूटर को परिभाषित कर सकें, लेकिन ये नहीं है कि इसी वर्ड से मिल के हमारा कंप्यूटर बना है. ओके, नाउ वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंप्यूटर. तो इफ़ यू टॉक अबाउट कैरेक्टरिस्टिक्स, तो किसी भी चीज़ की जब हम कैरेक्टरिस्टिक्स को स्टडी करते हैं तो देखो दो चीज़ें होती हैं, उसकी पॉजिटिव्स और उसकी नेगेटिव्स, जिसको हम बोल सकते हैं उसका स्ट्रेंथ या उसकी वीकनेस. तो फर्स्ट थिंग इज स्ट्रेंथ ऑफ कंप्यूटर. In strength, the first thing that comes here is speed of now. So if we talk about speed, the computer work has amazing speed without making any mistake. If we talk about us, we can make mistake, but the computer never make mistakes, and it can execute millions or trillions of execution per second. That means if we talk about calculation, it can perform millions of calculation per second. Second thing is accuracy. In addition to the speed, computer perform its task with great accuracy. It hardly commits mistake. और जो मिस्टेक अगर इससे होते भी हैं वो इसलिए होते हैं क्योंकि अगर हमने इनपुट गलत दिया तो आउटपुट गलत ही मिलेगा, लेकिन अगर हम इनपुट हमेशा सही दें तो कंप्यूटर हमेशा एक्यूरेट रिजल्ट ही देगा. Third one is reliability. Computer is very much reliable than a human being as it never gets tired. जैसे अगर कोई काम बार बार करने के लिए कहा जाए, अगर सुबह से लेकर शाम तक अगर आपसे कोई काम करा दिया जाए तो आप शाम को कहोगे मैं थक गया. But if you use computer for a long period of time, like
1 महीने 2 महीने तक भी कंप्यूटर को ऑन रखो, उसको यूज़ करते रहो, कंप्यूटर कभी आपसे ये नहीं कहेगा कि आई गॉट टायर्ड, आई कैन नॉट डू एनीथिंग. Fourth is the storage capacity. To computer can store a large amount of data in its memory in the form of documents, graphics, sounds, etc. किसी भी फॉर्म में बहुत ही ज़्यादा डेटा हम स्टोर कर सकते हैं. आप लोग सुने होंगे आज की डेट में तो हम सेवरल टेराबाइट्स में डेटा स्टोर करते हैं. Versatility, तो computer can perform various types of operation. For example, we can play games in computer, we can watch videos, we can listen to music, we can use internet, we can type something in word, etc., etc. So computer is a versatile machine. And sixth one is reduction in manpower. Reduction in manpower, that means with the use of computer a large amount of paper wastage जो हमारे होते थे वो अब नहीं हो रहे हैं, और मैन पावर कहीं ना कहीं रिड्यूस हो रहा है. बिकॉज कि हम यहाँ पे पहले क्या होता था, किसी भी चीज़ को करने के लिए हमें ज़्यादा लोगों की ज़रूरत पड़ती थी, और आज के डेट में अगर हम देखें तो हमें कम से कम लोगों से ही वो सारे काम कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ कंप्यूटर. जैसे आप देखो, अगर कोई मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, वहाँ पे कंप्यूटर्स हैं जो चीज़ों को बना रहे हैं, और उनको हैंडल करने के लिए इक्का दुक्का लोगों की ज़रूरत पड़ती है, और सारी की सारी चीज़ें ऑटोमेटिकली बनती जाती है विद द हेल्प ऑफ कंप्यूटर. नाउ सेवेंथ थिंग इज रिडक्शन इन पेपर वर्क. So reduction in paperwork with the use of computer, a large amount of paper wastage can be prevented in any organization. A computer store data in the form of records that help in reducing a lot of paper work. For example, बैंक में भी हमारा जो इन्फॉर्मेशन है वो कंप्यूटर में स्टोर होता है. अब आज की डेट में बहुत सारे जो डॉक्यूमेंट्स पहले बनते थे वो नहीं बनाए जा रहे हैं. आपके स्कूल में आपकी इन्फॉर्मेशन हम लोग कंप्यूटराइज स्टोर कर रहे हैं. तो इससे फ़ायदा क्या होता है कि हमें स्टेशनरी वेस्ट कम से कम करनी होती है. नाउ इफ़ यू टॉक अबाउट लिमिटेशन ऑफ कंप्यूटर, तो देखिए दो लिमिटेशंस हैं. फर्स्ट, लिमिटेड एबिलिटी टू थिंक. कंप्यूटर कैन नॉट टेक डिसीजंस बाय इट्स ओन. ऑल्दो आज की डेट में एआई पे, दैट मीन्स आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे काम कर चल रहा है, जिसमें रोबोटिक्स और कंप्यूटर को इस तरीके से बनाया जाए कि वो कंप्यूटर डिसीजन ले सके. लेकिन अभी तक ये फ्यूचरिस्टिक है अप्रोच, अभी तक ये ऐसा संभव नहीं हो पाया है. तो कंप्यूटर हैविंग लो एबिलिटी टू थिंक, या इन अदर वर्ड वी कैन से दैट कंप्यूटर हैव जीरो IQ. इसका इंटेलिजेंट कोटेंट जीरो होता है, ये अपने आप कुछ सोच नहीं सकता. एंड सेकेंड, डिपेंडेंस ऑन पावर. जैसे अगर पावर ना हो, इलेक्ट्रिसिटी ना हो, बैटरी ना हो, तो कंप्यूटर अपने आप कोई काम नहीं कर सकता. ये इसको कॉस्टली भी बनाता है और इसको पावर पे डिपेंडेंट भी बनाता है. तो दीज आर द टू लिमिटेशन ऑफ कंप्यूटर. नाउ वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द एप्लीकेशन ऑफ कंप्यूटर. तो इफ वी टॉक अबाउट द एप्लीकेशन ऑफ कंप्यूटर, द एप्लीकेशन ऑफ कंप्यूटर इज अ वाइड स्प्रेड. कंप्यूटर बहुत जगह पे यूज़ किया जा रहा है. लाइफ के हर एक पहलू में अगर आप देखो तो कंप्यूटर पूरी तरीके से आ चुका है. या ये घर हो, या ऑफिस हो, या मिलिट्री हो, या रिसर्च हो, हर जगह पे कंप्यूटर्स का यूज़ कर रहे हैं. तो पहली चीज़ है मिलिट्री. तो इन मिलिट्री, कंप्यूटर प्लेज अ विटल रोल इन डिज़ाइन एंड डेवलपमेंट ऑफ हाईटेक वेपन्स फॉर डिफेंस वेयर एब्सोल्यूट एक्यूरेसी इज एसेंशियल. जैसे अगर कोई रॉकेट अगर हम यूज़ करते हैं या उसको बनाते हैं, तो जैसे आप दिवाली में जो रॉकेट जलाते हैं उसमें तो आपको केवल एक बत्ती लगानी होती है और रॉकेट उड़ जाता है. लेकिन ऐसे तो हम रॉकेट नहीं बना सकते जिससे दूसरे देश पे लड़ाई कर सकें कि हम बत्ती लगाएं और वो रॉकेट जाके उस देश पे गिर जाए. ऐसा तो नहीं हो सकता. तो उसके लिए हमें एक हाई प्रिसीजन और हाई एक्यूरेसी चाहिए, और इसके लिए हमें पूरा पाथ कैलकुलेट करना होता है, डायरेक्शन कैलकुलेट करना होता है. एंड दैट इज डन विद द हेल्प ऑफ कंप्यूटर ओनली. Lot of weapons and lot of things are now being designed to ease the process of military. Now, second thing is banks. So as a result of computerization and networking, large number of banks, several facilities are offered to customer like online banking, mobile banking, real time balance check, etc. अगर इसका सबसे बड़ा बेनिफिट की हम बात करें, जो कोर बैंकिंग, सीरियस बैंकिंग की हम बात करते हैं, पहले ज़माने में क्या होता था कि
हमने अगर किसी एक बैंक के किसी एक ब्रांच में अगर पैसा जमा कर दिया है तो हम वहीं से ही पैसा निकाल सकते थे, या अगर दूसरे बैंक से या ब्रांच से हमें पैसा निकालना होता था तो हमें चेक साइन करके देना होता था और वो टाइम लगता था, उस काम को प्रोसेस होने में टाइम लगता था। लेकिन आज की डेट में क्या है, हम एक बैंक के एक ब्रांच में हम पैसा डिपॉजिट करेंगे और किसी भी दूसरे बैंक से या कहीं से भी हम, अगर हमारे पास एटीएम कार्ड है, हम पैसा विड्रॉ कर सकते हैं। दैट इज़ द बेनिफिट ऑफ बैंक, कंप्यूटर इन बैंक। Then after, if we talk about research, so computer facilitate research work in very efficient way by performing complex calculation, computation, which sometimes seem impossible for humans. एग्जाम्पल की अगर हम बात करें तो पहला है द कंप्यूटेशन रिक्वायर्ड फॉर लॉन्चिंग अ न्यू सैटेलाइट इन स्पेस कैन नॉट बी डन in isolation with just only humans. It requires computer to perform those kind of operations. Now second thing is earthquake and tsunami warnings are possible with the aid of computers only. Weather forecasting is done with the help of computers, and impact of nuclear test can be studied using computers. So these are the application of computer in research. Now if we talk about application of computer in education, so computer aided learning and teaching is slowly revolutioning our education system. जैसा आज की अगर हम बात करें, आज की डेट में अगर कंप्यूटर ना हो, मोबाइल फ़ोन ना हो, तो ये जो लॉकडाउन का पीरियड है इसमें आप, मुझे नहीं लग रहा है कि हम लोग पढ़ाई कर पाते। ये केवल कंप्यूटर्स के कारण ही संभव हो पा रहा है कि वी आर able to learn. Lot of applications are also nowadays available like Vedantu and Baiju and lots of application. आपके एक्स्ट्रा मार्क का भी एप्लीकेशन है विच आई थिंक यू ऑल आर यूजिंग। ये क्या है, ये एप्लीकेशन ऑफ कंप्यूटर है एजुकेशन में। नाउ इफ यू टॉक अबाउट मीडिया एंड कम्युनिकेशन, तो मीडिया टेलीविज़न इंडस्ट्री में कम्युनिकेशन के फील्ड में कंप्यूटर का बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं। SMS, chatting, cable TV, all are having the impact of computer in media and communication. जैसे आप देखते हैं लाइव रिपोर्टिंग होती है, लाइव स्ट्रीमिंग होती है कि स्टूडियो से जो एंकर्स हैं वो बोलते रहते हैं और लाइव जहाँ पे हो रहा है वहाँ से भी रिकॉर्डिंग्स को देख सकते हैं आप। या अगर आप देखो क्रिकेट मैच हो रहा है वहाँ से लाइव आप टेलीविज़न पे देखते हो, ये क्या है, ये कंप्यूटर का यूज़ है। देन आफ्टर क्रिमिनल आइडेंटिफिकेशन एंड लॉ इन्फोर्समेंट, तो कंप्यूटर का यूज़ करते हैं हम मैचिंग करने के लिए फ़ोटोग्राफ को, क्रिमिनल्स को उनके डिस्क्रिप्शन के आधार पे, फेस मैचिंग के आधार पे, उनके डीएनए के आधार पे। ये सीबीआई और बाकी जो हमारे ऑर्गेनाइजेशंस हैं, रॉ है, ये इन सब टेक्निक्स को यूज़ करता है जिससे किसी के हेयर से, उसके स्किन से, ब्लड सैंपल से उसका डीएनए निकाला जाता है और उसके बाद डीएनए फिंगरप्रिंटिंग की जाती है। इसके बारे में एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है बुक में, यू कैन गो थ्रू इट। देन आफ्टर इफ वी टॉक अबाउट एडुटेनमेंट, तो एट होम the computer is being used for education as well as entertainment. With a computer, the members of family can have an easy access to game, music, movies, etc. And at the same time they can do research, they can study, etc. Now if we talk about business, so computer have greatly helped the improvement of business activity throughout the world. Organization can easily have access to the लेटेस्ट टेक्नोलॉजी एंड मैन पावर अक्रॉस द वर्ल्ड। ई कॉमर्स सबसे बड़ा बेनिफिट है और सबसे बड़ा एग्जाम्पल भी है। जैसे इसका यूज़ करके आप देखो कि हम घर बैठे कोई भी चीज़ ऑर्डर करके मंगा सकते हैं, जैसे फ्लिपकार्ट पे, अमेजोन पे, बहुत सारे हमारे ऐसे एप्लीकेशन हैं। ये सारे के सारे बिजनेस को अप कर रहे हैं विद द हेल्प ऑफ कंप्यूटर। नाउ 9th वन इज़ एनिमेशन एंड फिल्म्स। आज की डेट में आप देखो कोई भी मूवी है, अगर वो उसमें स्पेशल इफेक्ट ना हो तो वो मूवी बोर लगती है। बहुत सारे एनिमेटेड मूवीज़ हैं, स्पेशल इफेक्ट मूवी है, बॉलीवुड, हॉलीवुड, ऑल ऑफ यूजिंग कंप्यूटर्स। लाइक अगर हम कुछ मूवीज़ की बात करें जिसमें बहुत ही ज़्यादा स्पेशल इफेक्ट यूज़ किया गया था, जैसे आपके बुक में भी दिया है, जैसे जुरासिक पार्क, गॉडजिला, अवतार, हैप्पी फीट, रोबोट, कोई मिल गया, कुंग फू पांडा, एट्सेट्रा, इन सब में इनका बहुत ज़्यादा यूज़ किया गया था। नाउ नेक्स्ट है कॉमर्शियल यूज़। तो एडवांस रिजर्वेशन ऑफ रूम्स इन होटल, बैंकिंग, सिनेमा टिकट्स, ऑल आर पॉसिबल विद द हेल्प ऑफ कंप्यूटर। देन आफ्टर इफ वी टॉक अबाउट इंजीनियरिंग एंड मैन्युफैक्चरिंग,
तो इंजीनियरिंग मैन्युफैक्चरिंग के लिए दो सॉफ्टवेयर जनरली यूज़ किए जाते हैं, CAE और CAM, और एक और होता है CAD। कंप्यूटर एडेड डिज़ाइनिंग, कंप्यूटर एडेड इंजीनियरिंग एंड कंप्यूटर एडेड मैन्युफैक्चरिंग, ये सॉफ्टवेयर यूज़ किए जाते हैं ब्लूप्रिंट्स बनाने के लिए, डिज़ाइंस बनाने के लिए चीज़ों के। देन आफ्टर स्पोर्ट, इसके बारे में तो बताने की ज़रूरत ही नहीं है, हॉकाई आप देखते हो, वैगन व्हील देखते हो, क्रिकेट मैच में, फुटबॉल मैच में डिजिटल जो बोर्ड्स होते हैं, ऑल आर यूजिंग कंप्यूटर्स। देन आफ्टर इन द फील्ड ऑफ मेडिकल science, the computer helps in the diagnosis of disease and in the management of control of various tests like x-ray, CT scan, ECG, ultrasound scan etc। किसी भी प्रकार का आज की डेट में जो हम टेस्ट देख रहे हैं उसमें से जितने भी मेजर टेस्ट हैं वो कंप्यूटर के यूज़ से ही किए जाते हैं। देन आफ्टर गवर्नमेंट सेक्टर, computers are used for official correspondence, budgeting, account reporting, payroll, attendance, इन सब काम को करने के लिए गवर्नमेंट सेक्टर्स में इनका यूज़ किया जाता है। आज के डेट में अगर आपको आय प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र कुछ भी बनवाना हो, यू नीड कंप्यूटर्स। देन आफ्टर library and museums, in library and museums computer are used to store enormous amount of data। जैसे अगर हम लाइब्रेरी की बात करें तो लाइब्रेरी की जो साइज़ है वो एक लिमिटेड साइज़ होती है, तो उसमें हम कुछ अमाउंट ऑफ बुक्स रख सकते हैं, लेकिन अगर हम वहाँ पे एक कंप्यूटर भी रख लें तो हम उसमें वो सारे ऑनलाइन बुक्स और मटेरियल्स रख सकते हैं जो हम अपने लाइब्रेरी में कंटेन नहीं कर सकते थे। नाउ मोबाइल कंप्यूटिंग, नेक्स्ट वन 16 application is mobile computing। Mobile computing is a technology where you are able to transmit video, voice, data by using wireless devices and or computer with or without connecting to physical fixed link। This involves mobile hardware, software and communication, and all these are example of computer in the communication। अब मोबाइल फ़ोन्स कई टाइप के होते हैं, जैसे स्मार्टफोन आपको पता ही होगा इसके बारे में, टैबलेट कंप्यूटर्स होते हैं, PDA होते हैं जिसको फुल फॉर्म है पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट। देन आफ्टर इफ वी टॉक अबाउट पब्लिशिंग, so computer have played a stellar role in publishing industry। Desktop publishing is able to handle all aspect of publishing। People now use word processor to write and edit document और उसके बाद उसको हम प्रिंट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल जो न्यूज़पेपर की प्रिंटिंग होती है, बोर्ड्स की प्रिंटिंग होती है, ऑल दीज आर डन विद द हेल्प ऑफ कंप्यूटर्स ओनली। नाउ द लास्ट but not least application is computer in our daily life। Nowadays the use of computer among with an internet connection has really changed our life and our habits। We listen to music on computer, we buy sell product online, we do internet banking, some people even buy groceries online with the help of big basket etc। foods online order करते हैं with the help of lots of applications are available like Swiggy, Zomato etc। we also chat with other friends with the help of messenger software like Skype, FaceTime, Google Talk etc। तो ये क्या है कि कंप्यूटर now becomes the inherent part of one's life। now moving forward, नेक्स्ट टॉपिक है कंप्यूटर सिस्टम। तो कंप्यूटर सिस्टम इज मेड अप ऑफ टू पार्ट, हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। हार्डवेयर रेफर्स टू ऑल फिजिकल कंपोनेंट ऑफ कंप्यूटर जिसको हम टच कर सकते हैं, देख सकते हैं, फील कर सकते हैं, जैसे मदरबोर्ड, मॉनिटर, कीबोर्ड, माउस, प्रिंटर, ये सब के सब हार्डवेयर डिवाइसेज हैं। वेयर एज सॉफ्टवेयर सेट ऑफ प्रोग्राम विच कंट्रोल द इंटरनल ऑपरेशन ऑफ अ कंप्यूटर एंड इंस्ट्रक्ट द कंप्यूटर व्हाट टू डू। एग्जाम्पल यूनिक्स, विंडोज, MS Word etc। all are example of software। now the software is of two kinds, system software and application software। system software those software that are required in order to function a computer। ये software अगर कंप्यूटर में नहीं होंगे तो कंप्यूटर काम ही नहीं करेगा। whereas application software are those software which adds extra benefit to our computer like word processor, games etc। जैसे अगर कोई गेम हमारे कंप्यूटर में नहीं है तो ऐसा नहीं है कि कंप्यूटर काम नहीं करेगा, बट we cannot do any we cannot play that game well। now next thing is operating system। operating system is the most important part of the computer। we can call it as soul of our computer। just like we are having soul in our human body, computer must have operating system if computer wants to function। every general purpose computer need OS to run
application and program, the OS perform basic tasks like understanding input from the keyboard and sending output to the output device like display screen. बहुत सारे ऑपरेटिंग सिस्टम्स हैं लाइक यूनिक्स है, लाइनेक्स, विंडोज, एंड्रॉयड, ऑल आर एग्जाम्पल ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम. नाउ इफ यू टॉक अबाउट फंक्शन ऑफ कंप्यूटर, तो देखो तीन बेसिक फंक्शन होते हैं और एक और इसमें ऐड कर दिया जाता है. इनपुट, आउटपुट, प्रोसेसिंग और स्टोरेज. दैट मीन्स एक्सेप्टिंग डेटा, इनपुट, प्रोसेसिंग डेटा, दैट मीन्स processing data in the form of information on the basis of instruction is processing. Storing the data, that is storage, and giving the desired result is output. So that is input, processing, storage and output. If we talk about an example, जैसे अगर हम देखें a car running on road, इसके लिए क्या होगा? पेट्रोल, डीजल इनपुट है. इंजन स्टार्ट वर्किंग with add of petrol diesel process है. car starts running output है. calling a person on mobile, dial the telephone number of that person, establishment of a connection and ringing a bell process है. and finally communication जो हो रहा है वो output है. ATM से अगर हम पैसा निकालने जाते हैं तो ATM में जो इंस्ट्रक्शन डालते हैं, कार्ड डालते हैं, ये क्या इनपुट है. प्रोसेसिंग होती है ATM कार्ड मशीन में, प्रोसेस है. और मनी जो हमें मिलती है वो उसकी आउटपुट है. नाउ नेक्स्ट थिंग है द बेसिक ऑर्गेनाइजेशन ऑफ कंप्यूटर. तो इन आवर कंप्यूटर वी आर हैविंग different unit. The first unit is input unit. The input unit is formed by attaching one or more input devices to a computer. A user input data or instruction through input device only like keyboard, mouse, etc. Now if we talk about input device, there are lots of input device available and we are going to talk it in detail in next lesson. Now if we talk about central processing unit, this is the second component of the computer system. So CPU is the main unit of computer, or it can call it as a brain of computer. It controls all the internal and external devices of computer and perform arithmetical and logical operation. CPU is very small and is referred to as microprocessor of the computer, and a microprocessor is a type of integrated circuit IC built on teeny piece of silicon. A microprocessor chip contains millions of transistors. The transistors work together to store and manipulate data so that the microprocessor can perform a wide variety of functions. There are two parts of the CPU, ALU and CU. ALU stands for arithmetical logical unit and CU stands for control unit. Now output unit is collection of those devices that are used to produce output, and like VDU, visual display unit, and printer, speaker, etc. Now according to this diagram, you can see there is a diagram given which displays the structure of computer. Input unit, data instructions, इससे हम input करते हैं. कंट्रोल यूनिट और ALU और MU होते हैं हमारे CPU में. ALU अरिथमेटिकल लॉजिकल यूनिट, CU कंट्रोल यूनिट और MU मेमोरी यूनिट. और यहाँ पे हमारे आउटपुट डिवाइसेस होते हैं, इनको हम बोलते हैं आउटपुट यूनिट. और ये पूरा का पूरा है हमारा प्रोसेसिंग यूनिट. और इससे जुड़ा होता है हमारी सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस लाइक हार्ड डिस्क एक्सेट्रा. नाउ मूविंग फॉरवर्ड, नेक्स्ट है हमारा CPU एंड इट्स कंपोनेंट. तो देखिए MU, ALU एंड CU. तो अगर हम बात करें MU की, MU हमारी इंटरनल मेमोरी को बोलते हैं, जो हमारी मेमोरी यूनिट होती है. तो द मेमोरी यूनिट इज द प्रिंसिपल स्टोरेज ऑफ कंप्यूटर. इट स्टोर्स बोथ डेटा एंड इंस्ट्रक्शन. द डेटा एंड इंस्ट्रक्शन कैन बी स्टोर्ड परमानेंटली in this unit so that they are available whenever required. Now computer memory are classified into two types: internal memory and external memory. Internal memory, every computer has certain amount of memory, usually referred to as main memory. This is called internal memory of primary memory of the computer. Primary memory is a place where data and programs are stored temporarily as long as they are being executed. There are two basic types of primary memory, RAM and ROM. One more are there, cache memory. तो पहले हम बात करें RAM की. RAM stands for random access memory. It is a type of computer internal memory that can be accessed randomly.
That means we can access any portion of the RAM in any order. Whenever information we enter into the computer goes first in RAM and remains there as long as we are working on an application. जब तक हम काम करते रहते हैं तब तक डेटा हमारे रैम में रहता है. इट इज़ अ वोलेटाइल मेमोरी. ये वोलेटाइल मेमोरी है. वोलेटाइल मतलब क्या है यहाँ पे कि डेटा और इंस्ट्रक्शन इसके अंदर स्टोर तो हो सकता है, लेकिन तब तक ये टेम्पोरली डेटा को स्टोर करता है जब तक हमारा कंप्यूटर ऑन है. एक बार कंप्यूटर हमारा ऑफ हो गया या रीस्टार्ट हो गया तो डेटा इरेज हो जाता है. नाउ टाइप्स ऑफ रैम. तो देखिए यहाँ पे 4 टाइप होते हैं रैम के: डी रैम, एस रैम, एस डी रैम और डी डी आर. तो डी रैम डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी जो सबसे पहले यूज़ किया जाता था. फिर आया एस रैम, स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी. ये फास्ट है, एक्सपेंसिव है डी रैम से. फिर आया एस डी रैम, सिंक्रोनस डायनेमिक एक्सेस मेमोरी, रैंडम एक्सेस मेमोरी. ये डी रैम का नेक्स्ट वर्जन था. और आज की डेट में डी डी आर यूज़ करते हैं, डी डी आर 2 यूज़ करते हैं जो डी डी आर से भी आगे का है. डी डी आर का फुल फॉर्म है डबल डेटा रेट. इसका मतलब आप समझ ही सकते हो कि ये कितना फास्ट होगा. अब डी डी आर 2, डी डी आर 3, डी डी आर 4 आल्सो अवेलेबल फॉर द प्रोसेसर लाइक i3, i5, i7. नाउ सेकेंड थिंग है रोम. तो रोम स्टैंड्स फॉर रीड ओनली मेमोरी. इट इज़ अ टाइप ऑफ मेमोरी फ्रॉम विच इंफॉर्मेशन कैन ओनली बी रीड, वेयर एज इन केस ऑफ रैम इंफॉर्मेशन कैन बी रीड एंड आल्सो रिटन टू. नाम से क्लियर है, रीड ओनली. हम इससे केवल डेटा को रीड कर सकते हैं. नाउ इफ़ यू टॉक अबाउट टाइप्स ऑफ रोम, तो देखो पहला होता है पी रोम, जिसको बोलते हैं प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी. नाम से क्लियर है, इसको हम केवल प्रोग्राम कर सकते हैं. एक बार हमने इसको बना दिया, ये वन टाइम प्रोग्रामेबल होता है. एक बार हमने इसको बना दिया, इसको इसमें प्रोग्राम डाल दिए, फिर हम इसको इरेज नहीं कर सकते. जस्ट लाइक एक पेन होता है, लिखो फेंको, एक बार जब ख़त्म हो गया तो उसको फेंकना ही है, वैसे ही ये रोम होता था. फिर आया ई पी रोम, इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी. इसको हम इरेज भी कर सकते थे और प्रोग्राम भी कर सकते थे. ये ज़्यादा बेटर था पी रोम से, लेकिन इसको इरेज करना बहुत ही टफ टास्क हुआ करता था. उसके बाद आया ई ई पी रोम, इलेक्ट्रॉनिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, जहाँ पे हम इलेक्ट्रिसिटी का यूज़ करके इसको इरेज कर सकते थे और उस पर डेटा राइट कर सकते थे. फिर आया हमारा फ्लैश मेमोरी. फ्लैश मेमोरी सॉलिड स्टेट मेमोरी में आता है. ये भी ई ई पी रोम का ही टाइप है, विच मेंटेन्स द स्टोर्ड इंफॉर्मेशन इवन विदाउट अ पावर सोर्स. अगर पावर सोर्स हट भी जाए तो भी इसके अंदर डेटा रहेगा, जो मोबाइल फ़ोन में और MP3 प्लेयर में या मेमोरी कार्ड लगाए जाते हैं उनकी बात है. फिर है मास्क्ड मेमोरी. तो इट इज़ अ मेमोरी दैट इज मैन्युफैक्चर्ड विथ कंटेन. दिस चिप कंटेन अ सॉफ्टवेयर मास्क दैट इज बर्न्ड ऑन द चिप during the design phase of semiconductor manufacturing process. It is used in computer system that requires long term sustainability. Then after, अगर हम इसके बारे में जान लो, नहीं तो तुम्हें डाउट रह जाएगा आप लोगों को. मास्क मेमोरी हम उन कंप्यूटर में यूज़ करते हैं जहाँ पे हम चाहते हैं कि कंप्यूटर लंबे समय तक वर्क करे और कुछ डेटा पे ही उसे काम करना है और वो डेटा हमें बार बार चेंज भी नहीं करना है. जैसे अगर मान लो सुनामी डिटेक्शन सिस्टम है, उसका काम केवल सुनामी को डिटेक्ट करना है. उसमें हम ये नहीं चाहेंगे कि उसमें हम गेम भी खेल लें, उसमें हम कोई और भी काम कर लें. तो उस समय जो प्रोग्राम्स है वो बना के हम मास्क रूम में डाल देंगे कि फिर उसको हम कभी हटाएं भी ना, और हटाए भी ना तो हटे भी ना, और लंबे समय तक वो वहाँ पे एग्जिस्ट करे. देन आफ्टर कैश मेमोरी, द नेक्स्ट थिंग इज कैश मेमोरी. CASHE, CACHE स्पेलिंग है, लेकिन पढ़ते हैं इसको CASH जैसे कैश. Cache memory is a special high-speed memory that is also a type of physical memory which can either be inserted on a motherboard or made a part of the CPU. The CPU uses cache memory to store instructions that are repeatedly required to run programs. Actually हम क्या करते हैं, ये सबसे फास्टेस्ट मेमोरी में आता है. इसको हम सबसे पहले यूज़ करते हैं. जो भी डेटा इंस्ट्रक्शन है वो कैश में डालते हैं और फिर कैश से हम उसको रीड करते हैं प्रोसेसर के द्वारा. मतलब डेटा हमारा एक्चुअली स्टोर होता है हार्ड डिस्क में. हार्ड डिस्क से डेटा जाता है पहले रैम में, रैम से डेटा आता है कैश में, और कैश से डेटा प्रोसेसर के द्वारा रीड किया जाता है. 2 टाइप की कैश मेमोरी होती है, एक्सटर्नल कैश मेमोरी और इंटरनल कैश मेमोरी. एक्सटर्नल कैश मेमोरी जो हम एक्सटर्नली लगाते हैं, और इंटरनल कैश मेमोरी जो उसमें पहले से लगी होती है. देन आफ्टर एक्सटर्नल मेमोरी, अभी हम बात कर रहे थे इंटरनल मेमोरी जिसको फिजिकल मेमोरी भी बोलते हैं. अब अगला है हमारा एक्सटर्नल मेमोरी.
So external memory, also known as auxiliary memory or secondary memory, it is needed since the main memory is temporary, expensive and insufficient to store huge amount of data. जैसे अगर हम रैम की बात करें तो 64 GB, 128 GB मैक्सिमम, लेकिन अगर हमें सेवरल टेराबाइट्स में डेटा स्टोर करना है तो हमारे पास एक ही रास्ता है कि वी गो फॉर एक्सटर्नल मेमोरी. In next video we will talk about the next part of this lesson, that means the type of external memory, etc. Thank you.